My lovely students, welcome to Mathological. Let us start the session, and in this session we'll be discussing the bar graph based DI sets from SRCC GBO examination 2024. So the first set is a very easy set, and the second one not that easy but not difficult either. So start करते हैं. First set पहले practice करते हैं. So the following bar graph shows the revenue generated by the three companies A, B, and C in different years. In 2015, 16, 17, 18, and 19. And the first question is, what is the ratio of total revenue generated by company A to company B in the given 5 years? Company A का total revenue generated कितना है? 455 plus 225, that is 680 plus 305, 985, 340, 1325 plus 440, 1765. This is the revenue generated by company A in millions, 1765 million. और फिर कंपनी बी का कैलकुलेट करना है. बट देखो ऑप्शंस को चेकआउट करो तो 1765 इज अ पेक्यूलियर नंबर. दिस इज अ फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 353. तो ऑप्शन डी इज द ओनली पॉसिबल आंसर, और तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता. Isn't it so? Because 257, 323 और 179 का मल्टीपल तो है ही नहीं नंबर हमारा, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी आंसर होगा. अगर ऑप्शन डी आंसर है तो फिर कंपनी बी के लिए वैल्यू क्या निकलेगा? दैट विल बी 281 into 5, दैट विल बी 1405. तो ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज करना होता तो कर भी लेते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. बट ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना है हमेशा. ठीक है, तो 210 plus 245 दैट इज 455 plus 350, तो दैट विल बी 805, 280, 1085 plus 320, 1405. So this is the value for A and B. Second question, what percent is the revenue generated by companies A and B in 2016 of revenue generated by B and C in 2018? A and B in 2016 क्या वैल्यू आ रहा है? For A and B, this is 470 million, and by B and C in 2018, this value is 280 plus 310, 590. So 47 by 59. 48 by 60 is 80%. So this is roughly 80%. 80% से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा. So almost 80%. Option D will be the answer. Next question. What is the average of total revenue generated by company A in 2019, B in 2018, C in 2016? A 2019 value is 440 plus B in 2018, 280 plus C in 2016, which is 450. So divided by 3. So this is 1000 plus 170, so 1170 by 3, which is 390. Option A is the answer. Next question. What is the average revenue generated by companies A, B, and C in 2015? Average in 2015. So 325 seems to be very close to average. 325 minus 115 or plus 130. So this is minus 115. This is plus 130. तो नेट डेविएशन कितना आ रहा है? 15 का. तो 325 plus 15 divided by टोटल वैल्यूज 3 है by 3, तो 330 इज द आंसर. अदरवाइज सीधे भी ऐड करके कर लोगे, बट ज्यादा वैल्यूज होती है, डेविएशन काम कर जाता. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. सो दिस वाज अ वेरी इजी सेट, कोई कैलकुलेशन भी खास नहीं था और एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड सेट देखते हैं. The provided bar graphs outline the population and the national income of a country from the fiscal years 2014-15 to 2019 and 20. So first bar graph is giving us national income in rupees crores, and second bar graph is giving us population in crores. और क्वेश्चन नंबर 1 है, in which year is the increase in per capita income compared to the previous year lowest? Increase in per capita income compared to the previous year. तो per capita income is equal to national income divided by population. बोथ आर इन क्रोर्स, बट हमें क्योंकि वैल्यूज को कंपेयर करना है और बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, तो कहीं पे भी एब्सोल्यूट वैल्यूज से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ वैल्यूज को कंपैरेटिवली ही एनालाइज करना है. तो कंपैरिजन देखना है सिर्फ. सो वी आर बेसिकली डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन. ठीक है, तो अपनी चीजों को सिंपल रखने के लिए एज्यूम कर लो फर्स्ट 3 वैल्यूज को ले लो सारे केसेस में, और उसी को डिवाइड करके एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो. बट ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट 3 वैल्यूज के बाद जो फोर्थ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 8, तो 343 को 344 मान लो. 7 या 8 है, 392 मान लो. ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज को मार के और एस्टिमेशन कर लो. ठीक है, सो इन फर्स्ट केस 2014-15, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19,
and 1920. So for 14-15, per capita income will be 344 divided by 111. 344 divided by 111. 111. तो 111 का 3 टाइम्स हो गया, 333, फिर बचा हमारा 11, तो 3.1 वैल्यू आ रहा है, 3.1. ओके. 15-16 के लिए दिस इज 392 डिवाइड बाई 112.5. तो 3 टाइम्स गए, 337.5 हो गया, 337.5 हो गया, और फिर बचा हमारा 54.5. तो रफली 3.5 के आसपास वैल्यू आ रहा है. 3.5 से थोड़ा सा कम आ रहा है, बट मान सकते हैं 3.5 आ रहा है. ओके, क्लियर है. तो ऑलमोस्ट 3.5, स्लाइटली लेसर आ रहा है, बट मान लिया 3.5 है. नेक्स्ट वैल्यू 16-17, दिस इज 437 बाई 115.5. तो 4 टाइम्स होगा 462, उससे 25 लेसर है, 25 लेसर है, तो रफली 3.8 आ रहा है. नेक्स्ट वैल्यू 495 डिवाइड बाई 117.75. तो 4 टाइम्स विल बी 469, बच गया 26, तो रफली 4.2 के आसपास वैल्यू आ रहा है. स्लाइटली हाइयर देन 4.2, स्लाइटली हाइयर. ठीक है, यहां पे स्लाइटली लेसर था. ओके. 18-19 में वैल्यू 583 डिवाइड बाई 120. तो 120 into 5 will be 600. So minus 0.15, 4.85, almost 4.85, slightly higher. और 1920 के लिए this value will be 650 by 122.75. 5 times will be 614 के आसपास वैल्यू आएगा 5 टाइम्स. ठीक है, सो रफली 5 टाइम्स 614, और फिर बचा 36, तो 5.3 ऑलमोस्ट. ओके, सो दीज आर ऑल द वैल्यूज. क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, लोएस्ट चाहिए हमको. तो इंक्रीज हमारा कितना आ रहा है, फ्रॉम 14-15 टू 15-16 द इंक्रीज इज 0.4 का, देन 0.3 का इंक्रीज है, अगेन 0.4 का इंक्रीज है रफली, और फिर इंक्रीज है हमारा 0.65 का, एंड देन इंक्रीज इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.45. लोवेस्ट वैल्यू आ रहा है हमारा इन दिस केस, विच इज इन 16-17. So lowest is in 16-17. Option B will be the answer. Next question. Which of the following years witnessed the highest increase in per capita income? Highest कब आया है हमारा? Highest is in 18-19. 0.65 का. 18-19 will be the answer. In which year is the per capita income the highest? So per capita income is highest in 1920 itself. Option A. तो एक बार कैलकुलेशन कर लिया, स्ट्रेट अवे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सीधे हैं. लास्ट क्वेश्चन. In which year is the difference between percentage increase in per capita income and percentage increase in population compared to the previous year the highest? Difference between percentage increase in per capita income and percentage increase in population compared to the previous year highest. Okay. So that is what we need to find out. फिर से एक बार वैल्यूज लिखते हैं. तो 2000 देखो इंक्रीज चाहिए प्रीवियस ईयर से, तो 2014-15 का तो मतलब नहीं है. 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20. ठीक है, वैल्यू लिखना पड़ेगा बस. तो वैल्यूज क्या थी हमारी? 3.1, 3.5, 3.8, 4.2. थ्री पॉइंट फाइव, 3.8, 4.2, 4.85 एंड 5.3. These were all the values. ओके, और हमें चाहिए परसेंटेज इंक्रीज. सो इंक्रीज आया हमारा 0.3. Here the increase again is sorry, this was 0.4 and then 0.3, 0.4, 0.65 and 0.45. परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? बेस वैल्यू 3.1 है, इंक्रीज हुआ है 0.4 का, तो द इंक्रीज इज रफली 13.3%. इंक्रीज 13.3%. इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. द नेक्स्ट वैल्यू 0.3 का इंक्रीज हुआ है 3.5 पे, तो रफली दिस इंक्रीज इज 8.5%.
0.4 का इंक्रीज 3.8 पे, तो 10.5% का इंक्रीज हुआ है। 0.65 का इंक्रीज 4.2 पे 10% हुआ, 0.42, और 5% होगा 0.21, तो रफली 15.5%। एंड देन इंक्रीज आया है 0.45 का 4.85 पे, तो इंक्रीज इज रफली 9 पॉइंट समथिंग, 9.5% मान लो। बट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन पर्सन इंक्रीज पर कैपिटा इनकम एंड पर्सन इंक्रीज पॉपुलेशन। अब देखो, जो हमारा नेशनल इनकम का ग्राफ है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। बट ध्यान से देखो पॉपुलेशन वाले ग्राफ को, पॉपुलेशन वाला ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है 104 करोड़ से। सो दैट इज भाई बहुत माइनर डिफरेंस है यहाँ पे। एज सच 111 करोड़ इज द पॉपुलेशन 2014-15, और फिर हो जाएगा 112.50, यानी कि इंक्रीज कितना है 1.5 का इंक्रीज आया, रफली 1.5% हो गया, रफली 1.5%, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, isn't it so? 1.5% का इंक्रीज हो गया। देन 112.50 से 115.503 का इंक्रीज आया है, विच विल बी रफली 2.7%। देन इंक्रीज आया है 2.25 का, बेस हमारा 115 रफली 2% आ गया इंक्रीज। देन यहां से 120 गया है, अगेन 2% इंक्रीज हुआ है, और फिर अगेन 120 से 122.25, अगेन दिस इज रफली 2%, 2% तो थोड़ा सा कम होगा, बट रफली 2% इंक्रीज है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हमारा सफिशिएंट है, 13.3%, 8.5%, 10.5%, 15.5% एंड 9.5%। अब देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंस कब आया है, तो हाईएस्ट वैल्यूज हमारी क्या है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2.7% के बीच की वैल्यूज है, और दीज वैल्यूज आर हाईएस्ट वैल्यू है वो 13.3% एंड 15.5%। 13.3% के रिस्पेक्टिव इंक्रीज है हमारा 1.5% का, तो डिफरेंस हमारा आएगा रफली 11.8%, और यहाँ 15.5% रिस्पेक्टिव इंक्रीज है 2% का, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 13.5%। तो डेफिनेटली दिस इज द हायर वैल्यू, बिकॉज द डिफरेंस अकेली 13.3% से ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन होगा 2018-19, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द मैक्सिमम डिफरेंस। क्या ये क्लियर है? ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम बार ग्राफ्स दैट अपीयर्ड इन SRCC GBO 2024 examination. किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड दैट्स ऑल।